Do you think starting a business was exciting, but it turned out to be scary? You know what? You just figured out there were a lot of problems: people, place, process, pricing, cost, finance, investors, partnerships, a lot of it, and many more to come in future. But you know what? When you align things together, you may always find a way. And in this podcast, we would be talking about everything in between people and finance for a business. And let's explore this journey together, from excitement to scary and then to an excellence. The problems that an entrepreneur would have or might encounter those as they try to set up a business or scale the business. Today we have two guests with us. Ms. Modas Gupta has got 25 years of experience as a consultant, coach, trainer, and now an author. We have Mr. Rajit with us, who's a CA and has been coaching a lot of businesses and has been consulting a lot of businesses scale their businesses financially, whereas Mo is someone who takes care of people part of the business, where they focus on the operations with reference to people and the teams. Myself, I am Tithi Soladra. I'm your host today for the podcast, where we would be questioning these two experts and trying to and we'll try to understand what are the problems that usually entrepreneurs face and what are the problems that an aspiring entrepreneur would face. So I have a series of questions today, where we are assuming that someone is trying to start a business or trying to scale the business from whatever level they are. So my first question is to you, Rajat. Me as an aspiring entrepreneur usually gets a cold feet, where I'm confused about when to start it, how to start it, what are the structures that I should be taking care of financially in my business, and some basics that I should keep in my mind while I'm trying to start a business. Okay. Thank you for inviting me. See, Tithi, the business is laid on the foundation wherein a person is thinking of scaling his business only. Okay, कोई भी ये सोच के business start नहीं करता कि मेरा business चलेगा या नहीं चलेगा. So most of the times people think कि हाँ we will do good, but जब हम structures की बात कर रहे हैं तो structures अपने आप में एक कॉम्प्लेक्सिटीज लेके आते हैं. आई एक्सप्लेन. पहले हम स्ट्रक्चर्स को समझ लें कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो इफ विल टॉक अबाउट अ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है हमारे यहाँ पर. सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक पार्टनरशिप या एलएलपी, और उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास में कंपनी का स्ट्रक्चर, यानी कि या तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, एक लिमिटेड कंपनी हो सकती है. ये हम बिजनेस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं. इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉमनली बिजनेसेस में यूज नहीं होते हैं, कॉमनली यूज नहीं होते. तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे सवालों के जवाब देना ज़रूरी हो जाता है जब वो कोई भी स्ट्रक्चर चूज करेगा. स्ट्रक्चर चूज करने के पहले उसे ये सवाल का जवाब देना होगा कि मेरे बिजनेस में क्या कोई एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की. से फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि किसी को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की ही नीड हो, क्योंकि वो जिसको सर्व करने वाला है दे वांट अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ओनली, क्योंकि उसका अपना एक नीश है. लेकिन हमें ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं. अब बिजनेस किक ऑफ नहीं हुआ, वो ये भूल जाते हैं कि मैंने एक कंपनी भी बना रखी है. सिर्फ एक नॉलेज के लिए हम ये बात करते हैं कि हर साल आपकी कंपनी को एक रिक्विजिट फाइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसके कंप्लायंसेस पूरे करने की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्टर्स के केवाईसी करने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, पेनल्टीज लग जाएगी, आप दूसरी कंपनी नहीं बना पाओगे. तो अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि बिना जाने बिना समझे वो एक कंपनी बना लेते हैं. बहुत सी बार लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस स्टेज पर कंपनी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हैवी कैपेक्स इन्वॉल्व है और आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बिजनेस कर लिया, अब मान लेते हैं कि आप किसी इन्वेस्टर को लेकर आने वाले हो, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है. सो इन दैट सिनेरियो यू नीड ईदर अ कंपनी which is a private limited or a limited company. In sometimes partnership works. तो इस तरीके से बिजनेस की निटिक्रिटी देखते हुए, एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए हम उससे कुछ सवाल पूछें,
वो अपना माइंडसेट बताए और ये देखे कि मैं लेस कंप्लायंस स्ट्रक्चर में जाना चाहता हूँ या मेरा स्ट्रक्चर अभी से मुझे कॉम्प्लेक्स रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाकर मुझे उसको स्केल करने में दिक्कत आएगी। सो ये सभी बातें मेजरली इन्वॉल्व होती हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है। तो ये सवालों के जवाब जब एक एंटरप्रेन्योर देता है तब वो अपने स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकता है। Correct. So, I mean, the word that we quote these days, registration of the company. Can you break that down for us within these three scenarios? So generally, registration a company as an entrepreneur, बहुत सारे लोग उनकी सोल प्रोप्राइटरशिप को भी कंपनी की तरह लेते हैं। Correct? So if I'll say Rajit Tillani and company, so if it is a sole proprietorship, being a chartered accountant, you'll see कि most of the chartered accountants write ABC and company. Exactly. So whether that is a company? No, that is not a company. That could be a partnership firm, that could be a proprietorship firm. Okay. So proprietorship firm बेसिकली वहां पर जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो वहां पर कुछ एक सिंपल से रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारे यहाँ सबसे कॉमन है वो एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आसानी से किया जा सकता है, वैलिड अक्रॉस बोर्ड है, वो सभी लोग कर सकते हैं। वो एक कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, सभी का एक एमएसएमई सर्टिफिकेट बनता है बिकॉज दैट इज अ स्टेटस सॉर्ट ऑफ थिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर रजिस्ट्रेशंस। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, कोई दूसरे तरह का आपकी स्टेट के लॉ के हिसाब से कोई रजिस्ट्रेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ ड्रिवन बाय अ पार्टनरशिप डीड। स्पेसिफिक डीड के फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तभी वो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। देन एज फार एज द कंपनीज आर कंसर्न एंड LLPs आर कंसर्न, LLP आर स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप्स, बट उनका रजिस्ट्रेशन MCA की वेबसाइट पे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो हम ROC के साथ उसको रजिस्टर करते हैं, पार्टनरशिप्स को ROF के साथ में, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में रजिस्टर करते हैं, और कंपनीज को ROC में रजिस्टर करना होता है, वहाँ से नेम अप्रूवल होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। सो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, और ये रजिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं। उस स्टेट टू स्टेट उसकी स्टैम्प ड्यूटी, उसके स्ट्रक्चर्स डिफर कर सकते हैं। सो हम थंब रूल के बारे में बात नहीं कर सकते हैं जहाँ तक कुछ स्टैम्प ड्यूटीज इन्वॉल्व है। Correct. So it is more or less a kind of a birth certificate of a company. You register it, where you choose it is either it is a private limited firm or a sole proprietary firm or other options that we think of. Okay, that relaxes us a bit about breaking down these three, because we usually keep on hearing these words but somehow we don't put it in the silos to understand. So the next fear is how do we operationalize the process when the teams are involved, when people are involved? How are we trying to run? How do I choose which is the best one for me? Yes. See, मैंने जब पहला आपको बात बताया कि मेरा कैपेक्स क्या इन्वॉल्व है, अब आप पूछोगे कैपेक्स क्या होता है। Please break so that down. Basically when we are talking about heavy investments, जहाँ पर आप एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप लगा रहे हो, जहाँ पर हेवी फंड्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर जनरली मतलब in most of the scenarios we prefer a company structure. Company, whenever I'm speaking about company, I'm denoting a private limited company or a limited company. Okay. So why so? Because scaling those businesses are easy. Although आपकी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसको भी एक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर लेट मी टेल यू, एक कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट करना वैसा काम नहीं है। इट इज नॉट दैट सिंपल कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में एक कंपनी को वापस रिवर्स करके कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं, आसानी से नहीं हो सकता है। जितना फॉरवर्ड गोइंग आसान है उतना वापस बैकवर्ड आसान नहीं है। तो जब भी कैपिटल इन्वॉल्व है तब जनरली हम बैलेंस शीट्स के लेवल पे ये असेस करके कि यहाँ पर असेट्स बहुत सारी होंगी तो उनको बाद में ट्रांसफ़र करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसलिए हम शुरू से ही कंपनी फॉर्मेट में जाएंगे। हो सकता है कुछ रेगुलेटरीज ऐसी हों। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है जो आई विल नॉट नेम देम डायरेक्टली, बट एक बहुत सोफिस्टिकेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट में है, विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया राइट नाउ।
अब उनके पास में एक पर्टिकुलर एनओसी है, वो एनओसी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है आसानी से। तो ऐसे टाइम पर हमें ये सोचना होता है कि हम जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं बाद में उसको स्केलिंग में डिफिकल्टी तो नहीं आएगी। तो इस तरह के डिसीजंस हमें लेने हों तब हम हमेशा कंपनी फॉर्मेट प्रेफर करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कब लेनी चाहिए? एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है, सर्विस इंडस्ट्री में है, काम शुरू करना चाहता है, लेस कंप्लायंस के स्ट्रक्चर में रहना चाहता है, तब उसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर लेनी चाहिए। वहाँ पर टैक्सेशन भी कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड हैं, ईजियर हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और पार्टनरशिप तो तब है जब आप दो लोग साथ में काम करना चाहते हो, तब आप वो पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ लेस कॉम्प्लेक्स देन अ कंपनी बट a bit scalable from sole proprietorship. This is how it is. Correct. Okay. Thanks. That clears a lot of our doubts. However, the same question applies here as well, that when you're trying to start, scale, or probably innovate, start a new vertical in the same business, I think there are operational challenges when it comes to people assigning tasks. How do one strategize to operate such innovation or probably new venture? Okay. Thank you, Tithi, for having me for the show. A lot of founders have this question before taking the first step or after taking a few steps. सबको लगता है काम शुरू करेंगे, हायरिंग का प्रॉब्लम, कैसे लोग चाहिए होंगे. Because so I'll go back a little. If an aspiring entrepreneur, कि अगर मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, ओके, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरू कर लिया है बेस्ड ऑन सर्टेन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दे हैव, 5, 6, 7 साल दे हैव बीन इन अ बिजनेस. और एक तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो लेगेसी बिजनेस में हैं, ठीक है, जो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, जहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन चालू हुआ था, ओके, इफ आई वांट टू स्टार्ट एंड स्केल अ बिजनेस. सो एवरी बिजनेस, एज राजित सेड, स्टार्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ स्केलिंग ओनली, है ना? कोई बिजनेस इसलिए नहीं शुरू करता है कि मुझे स्केल नहीं करना है, बस बिजनेस करना है, देखते हैं. तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे फील दैट प्रेशर ऑफ हायरिंग, ओके, क्योंकि आप एक स्किल में आपका एक्सपर्टीज होता है, बट बाकी सारे कौन करेगा? ये सारी चीज़ें तो मुझे आती नहीं है. ऑल्टरनेटिवली फ्यू पीपल दे स्टार्ट और करते करते दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से थोड़ा बहुत पूछ के सीखते रहते हैं. नाउ I just have, so there are 7 major business functions. Okay. For any business. उसको फिर आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो. This is a magic tool. Wow. So the sales, marketing, okay, operations, right? Then comes your HR. Okay. Then is your finance and accounts. Okay. Okay. Can't say that without him. Yeah. With him sitting next to me. He was waiting for that thing to come out. So finance and accounts. And then there are 2 very important functions which is usually overlooked. That is research and development. And the last is management. Okay. सारे बिजनेसेस को ये 7 पिलर्स में डिवाइड किया जा सकता है, नो मैटर आपका बिजनेस किस स्टेज में है. Also the scale, I guess, whatever scale it is. कोई भी स्केल में है, कोई भी साइज का है, कोई भी बिजनेस यही 7 चीजों में ही चलता है. ओके. अब उसके स्केल और लेवल के हिसाब से ऑपरेशंस थोड़ा बड़ा होगा. अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जैसे राजित ने बोला, तो वहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, परचेज, क्यूसी, ये सब ऑपरेशंस का हिस्सा बन जाता है. ओके. इन सर्विस इंडस्ट्री ऑपरेशंस आर अ लिटिल लिमिटेड, रिटेल इंडस्ट्री ऑपरेशंस आर अ लिटिल लिमिटेड,
जहाँ पे परचेज बहुत कम होता है, रिटेल में परचेज रहता है, डिलीवरी रहता है, कस्टमर सर्विस रहता है, ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस में आ जाती है. करेक्ट. सो while setting up a business, you have to just have a clear understanding कि कौन सी चीज आपकी स्किल है और कौन सी चीज में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या थोड़े नॉलेज की जरूरत पड़ेगी. Once you break down your skill sets in these 7 areas, but majorly focusing on as a aspiring entrepreneur, you should focus, क्योंकि जब आप शुरू करने वाले हो तब सारा काम आपको खुद ही करना होता है. I think that is the beginning stage for most Yes. कि जब आप सारा काम खुद करते हो तो इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपको सारे डिविजन्स, सारे फंक्शंस के बारे में पता होता है. देन इट इज़ ईजियर फॉर यू टू डेलीगेट. फिर आप हैंड ओवर जब करो, टीम हायर करो, तब वो आसान हो जाता है. बट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, your major focus cannot move from 2 major departments, that is your research and development and management. That is where the entrepreneur's feet should be dipped in all the time. Yes. Okay. Now when we say research and development, हम फार्मा कंपनी नहीं है तो हमको constant research नहीं करना होता है. But research does not always mean lab. Correct. Your research means constantly identifying market opportunities. ओके, आज हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हर सर्विस, हर बिजनेस का एक टाइम तक एक सैचुरेशन आता है. मार्केट चेंजेस आते हैं, ग्लोबल मार्केट चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो अगर आप अपडेटेड नहीं हो, अगर आपका रिसर्च स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका स्केलिंग कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा. दैट इज़ वेयर अ फाउंडर शुड ऑलवेज हैव टाइम टू कीप हिज और हर रिसर्च वेरी स्ट्रॉन्ग. Correct. That is more or less related to being updated with the trends or probably new software skills. Yes. So what if today I start business A? Okay. What is the lifespan of this business? इसका saturation कहाँ पे जाके पहुँच सकता है? Correct. The timeline We- should constantly yes, be wired. yes. We saw so many businesses shut down during COVID. Yes. Nobody anticipated that कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. Correct. Right? So those kind of anticipations, COVID was an extraordinary situation, but there are times, I have certain clients, when we started working with them, they were very confident and happy कि हमारे clients 20 साल से हैं, हमको कहीं सेल्स के लिए नहीं जाना पड़ता है. But then things changed, the global markets changed, and पिछले 1 साल में now they are hunting for clients. They have to think about new verticals and diversification, because the global markets, imports, all these problems. Scenarios have changed. Yes. Correct. It is extraordinary the way you say कि COVID is an extraordinary event. I mean, it has somehow tested the resilience of the businesses. Correct. Correct. With that, I would add on a question where initially I planned a question for Rajit saying that I would want to start a publishing company, but now I would not call it a company, a publishing business. What kind of structure I should look at to begin with, and how do I project it when I probably trying to scale it? सी अभी मोर ने फाइनेंस एंड अकाउंट्स को 7th लेवल पे रखा, सो 5th पे था. अच्छा, फाइन. सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक 25 इयर्स के एक्सपीरियंस कोच अगर किसी चीज़ को 5th नंबर पे रख रहा है तो उसका कोई लॉजिक रैशनल होना चाहिए. बहुत सारे बिजनेसेस चालू होते से ही कंप्लाइंसेस में फंस जाते हैं. जब मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ तो ये मेरा टेस्टेड है कि 25 साल में मैंने लोगों को देखा है कि वो कंप्लाइंस ज़्यादा कर रहे हैं, बिजनेस कम कर रहे हैं. तो व्हेन मो इज सेइंग कि भाई आपको इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो आपको पहले बिजनेस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है. देयर आर वर्चुअल CFO सर्विसेज अवेलेबल एट वेरी लीस्ट कॉस्ट. आपको
उस स्ट्रक्चर में जाकर अपना टाइम रिसोर्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मॉनिटरिंग अवेलेबल होती है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, अभी आपने कहा कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने शूज़ कहाँ रखने हैं. मैक्सिमम टाइम ही शुड बी इन द मैनेजमेंट रोल ओनली. अगर वो कंप्लायंस करने बैठ रहा है, खुद अकाउंट्स बनाने बैठ रहा है, तो मेरा ये मानना है कि वो सक्सेसफुली बिजनेस नहीं कर रहा है. अब आप इसको बैक टेस्ट करो अपने ऊपर. आप एक पब्लिशिंग हाउस खोलना चाहते हो. आप ये सोचो कि मेरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है. क्या मुझे उसमें एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? क्या जो बुक खरीद रहा है वो एक प्राइवेट लिमिटेड नाम सुन के ही मेरी बुक खरीदेगा, या उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? The core idea becomes the genre or probably the content of the True. book. Absolutely Yes, to true. begin with at least. देयर इज़ नो हैवी कैपेक्स इन्वॉल्व. आप जब चाहें तब उसको स्ट्रक्चर को बदल करके स्केल कर सकते हैं. कितना हैवी इन्वेस्टमेंट होने वाला है. तो आपका ध्यान किस तरफ होना चाहिए? पहले कंटेंट क्रिएशन के ऊपर. पहले आपका सारा का सारा जो बिजनेस का फोकस एरिया है वो ये है कि मेरा बिजनेस किस तरह से बढ़े, ना कि कंप्लायंस किस तरह से बढ़े. तो मेरी सलाह हमेशा ये होगी कि ये सभी पैरामीटर्स जज करने के बाद में आपको जो लगता है कि मैं इस स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट सूटेड हूँ. अच्छा, somebody might criticize me looking at this कि नहीं नहीं इनको तो कंपनी के बेनिफिट्स ही मालूम नहीं है. हाँ, वो इस तरह के लोग हैं क्योंकि most of us have heard दिस हाँ कि भाई नहीं नहीं वो तो क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट विल होती है. हम जब पढ़ते थे तो हमें इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती थी कि आप अलग हो, कंपनी अलग है. अरे बाबा, आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो कंपनी कैसे जिंदा रहेगी? बिजनेस ही नहीं चलेगा तो कंपनी का अचार डालोगे तुम. सो इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो इन all my experience, my suggestion would be first to draw a line कि ये चीज़ है जो मेरे लिए हिंड्रेंस बन सकती है, ये चीज़ है जो मेरे लिए मैटर ही नहीं करती है. अगर आपके लिए स्ट्रक्चर मैटर करता है, अगर आपके लिए ये है कि मैं जिनसे डील कर रही हूँ वहाँ कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक सेपरेट एंटिटी होना ज़रूरी है, या मेरे को लोगों को लाना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा, तो आपको 100% एक कंपनी स्ट्रक्चर में जाना चाहिए. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ सोल प्रोप्राइटरशिप और विद अ पार्टनरशिप फॉर्म. बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो. तो फिर टैक्सेशन भी इन्वॉल्व है. तो आपको ये भी सोचना है कि क्या मेरी कोई दूसरी इनकम है, क्या मैं ये अलग से करने वाली हूँ. अच्छा, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि लोगों के सेपरेट बिजनेसेस होते हैं, दे वांट टू कीप इट सेपरेट. तो वहाँ पर हाँ ये सजेस्टिव होता है कि आप एक ऐसा एंटिटी अपनाएं जहाँ पर आप उसको सेपरेट लीगल एंटिटी कह सकें. तो उस तरह के सिनेरियो में आई वुड सजेस्ट कि यस यू शुड हैव अ कंपनी. Okay, so I think this is the upcoming question, that how do we see taxation with reference to this example that we have taken, number one. And number two, my registration format of a company or an organization providing a services which is more of a publishing kind of a service, what do my client would want it to be sound like to make it a legitimate kind of an organization? Because technically initially we'll start dealing online, we would not probably meet people face to face, right? So what sounds legitimate and how do we make it sound legitimate, or probably make it reflect legitimate? That is one. And the other thing is throw some light on taxation part of it. See, as far as the legitimate entities are concerned, people have a perceived notion about companies. Okay, if it is a private limited company, it has to be like बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है. बट लेट मी टेल यू कि एक ही प्रेमाइसिस पर 10-10 कंपनीज भी रजिस्टर हो सकती हैं. करेक्ट. ओके, सो आजकल हम एक कंसेप्ट में चल रहे हैं कि जहाँ पर एक ही ऑफिसेस को 10 लोगों को रेंट किया जा सकता है. तो क्या वहाँ कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती है? हो सकती है. आई हैव सीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप्स आर डूइंग 1000 करोड़ ऑफ बिजनेस. ओके, सो लोग जनरली यही मानते हैं कि नहीं नहीं एक कंपनी होगी तो ही 1000-2000 करोड़ का बिजनेस होगा. नो, आई हैव सीन पीपल डूइंग 1000 करोड़ बिजनेस इन देयर सोल प्रोप्राइटरशिप. इट्स देयर. तो अगर आपका टारगेट ऑडियंस, अगर आई थिंक मो एंड आई वर डिस्कसिंग दिस थिंग समडे कि
किसको डिलीवर करना है? आपका एक आउटसोर्सिंग का बिजनेस है, ठीक है, फॉरेन क्लाइंट है, मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करो, एब्सोल्युटली नॉट। भले ही वो कम्बरसम एक्सरसाइज है, वो कंप्लायंस हेवी स्ट्रक्चर है, बट यू हैव टू हैव अ प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी। दे विल नॉट ट्रस्ट यू एट एनी कॉस्ट। Correct. 100% नॉट। In case of overseas exchange of services. पर अभी किसी आदमी को एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लेते हैं कि उसे ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट बोल रही है 12 लाख रुपए तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि इतना व्यापार कर लो, आपको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो कैसे नहीं लगेगा? सो नोबडी टॉक्स अबाउट दैट कि भाई क्या। तो एक सोल प्रोप्राइटर है, 44 AD नाम का एक सेक्शन है, अप टू 2 करोड़ रुपीस 6% टैक्स ऑफर करते हैं, 12 लाख रुपए का इनकम होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, सिंपल स्ट्रक्चर है। अभी वो इंसान जाकर क्या कंपनी रजिस्टर करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो एक लॉजिकल वे में जाएगा कि हाँ पहले मेरा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए, अप टू 2 करोड़ सेल्स होती है, सो आई एम सॉर्टेड, 6% और 8% वॉट एवर XYZ। तो ये क्वेश्चंस के आंसर करना ये एंटरप्रेन्योर बता सकता है। ये आज मैं बोलूं कि आपको ये कर लेना चाहिए तो वो कल 2 प्रॉब्लम लेके आएगा कि सर आपने तो बोला था कि सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर लो, मैंने कर लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गया, मेरे बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी बोलो क्या करूं। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट की स्केलिंग, अभी स्टेट टू स्टेट क्या प्रॉब्लम होता है कि जब आप कन्वर्ट करते हो किसी भी पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करते हो, वहाँ पर एक स्टैम्प ड्यूटी इन्वॉल्व है। ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये आज हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कल मैं IPOs करता हूँ तो हम एक पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम पर चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। असेट जब मूव हो रही है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी कैन वेरी अप टू 10% इन स्टेट्स। Okay. तो किसी का 200-500 करोड़ रुपए का असेट है, सो जस्ट इमेजिन कि उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैम्प ड्यूटी का मतलब बर्डन आ जाएगा तो बिजनेस ही वाइबल नहीं बचेगा। तो ये बहुत सारा निटिक-ग्रिटी इन्वॉल्व है। पर मैं आपको इन शॉर्ट इतना बोल सकता हूँ कि अगर बहुत हैवी कैपेक्स इन्वॉल्व नहीं है, आप बिजनेस को पहले ध्यान देना चाहते हो, तो आप कम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जाओ, ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, डोंट बॉदर अबाउट। सरकार भी बोलती है 20 लाख रुपए तक GST का रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको भी कुछ तो समझ होगी कि बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए। तो इस तरीके से आप भी अपने पब्लिशिंग हाउस के बारे में ये सोच सकते हैं कि मेरा विजन अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म विजन क्या है, क्या इसमें कोई हिंड्रेंस पैदा होगा, कन्वर्जन में कोई तकलीफ आएगी, मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई पार्टनर आने वाला है। ये सभी सवालों के जवाब जब आप देखोगे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट सूटेड है। टैक्सेशन बट ऑब्वियस है, इंडिविजुअल का अलग है, पार्टनरशिप्स डे 1 ऑन अ सिंगल पेनी दे विल हैव टू पे टैक्सेस, कंपनी सिमिलर स्ट्रक्चर। Okay. जैसे एक इंडिविजुअल को स्लैब मिलती है, या अभी के लिए हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। ये गलत है, लेट मी कोट इट, ये गलत है, पर ठीक है, ये परसेप्शन है क्योंकि बहुत सारी इनकम उस दायरे में नहीं आती। पर हाँ, आप एक नॉर्मल बिजनेस इनकम कमा रहे हो, कोई दूसरी इनकम नहीं है, 12 लाख रुपए तक सरकार आपको बिना टैक्स भरे छोड़ देगी। Okay. So I think summarizing, if I'm a sole proprietor as a publishing house, I need not worry till I start making 20 lakhs in a year. That is GST. Yes, that is when GST हाँ, is that involved. kicks in. Correct? Yes. So yes, true, absolutely. Correct. And same applies incomes in terms of taxation till 12 lakhs. So I should be worrying more about 12 lakhs and 20 lakhs. If I'm somewhere around, I should consult people like you. That is what, मतलब layman's language. हाँ, एब्सोल्युटली। सी, अभी मैंने बहुत सारे नुकसान गिनवा दिए आपको, अब मैं आपको एक फायदा बताता हूँ। हाँ, that is more we are हाँ, interested in. क्योंकि लोगों को यूं लगता है यार, मतलब गलत बोला है तो रेमेडी भी तो बताओ। अभी कोई कंपनी है, कंपनी 2 लोगों के बिना शुरू नहीं होगी। Okay. Yes. ठीक है, Of course. आपकी कंपनी का प्रॉफिट हुआ 20 लाख रुपए,
ओके, अब आप बोलोगे कि यार टैक्स भरना पड़ेगा, क्या करें? तो अगर मैं दोनों डायरेक्टर्स को 10-10 लाख रुपए का सैलरी दे देता हूँ, जो लेजिट है, करेक्ट जो मैं कर सकता हूँ, करेक्ट करेक्ट है ना, ऑन स्क्रीन ये अलाउेबल है, मतलब कोई नोबडी कैन चैलेंज मी ऑन दिस, क्योंकि डायरेक्टर काम कर रहा है, पब्लिशिंग हाउस है, तो वो दोनों काम कर रहे हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए का सैलरी ले लिया, 12 लाख रुपए तक आप टैक्स फ्री हैं, कंपनी को भी टैक्स नहीं भरना है, आपको भी टैक्स नहीं भरना है। मेक सेंस पर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, 20 लाख रुपए होगा, आपको टैक्स लगेगा। Okay. So these are scenarios probably and Yes. interesting So, to know this. अब अदरवाइज फिर क्या होगा, सारे एंटरप्रेन्योर अगर टैक्स कंसल्टेंट बन जाएंगे तो मुझे मेरे सभी भाइयों की दुकान बंद करवानी पड़ेगी। So that brings me to a question here more. So the moment he says, okay, if I start earning 20 lakhs, I would probably think, let me get one more person in the team, right? So that I can assign some amount of salary. What should be the right time to hire people, or what is the right way of thinking that I need people in the team to be hired or to be partnered with? सी पार्टनरिंग का सजेशन तो राजित ही दे सकता है। Correct. So let's stick to hiring part. So, see, aspiring, again, this question comes more to aspiring entrepreneurs. I'll take your example. So, what you just said, your wish list, you're aspiring to open a publishing house, correct? Now, there are certain things you can do, you know for sure. Yes. ठीक है, but there are certain things you know for sure कि ये तो मैं नहीं कर सकती, करेक्ट? तो वहाँ पे आप या तो किसी को हायर करोगे, तो जैसे ही आप हायर करने का सोचोगे आपको लगेगा कि यहाँ पे तो मेरे को खर्चा लगेगा, तो मेरे को पैसा लाना पड़ेगा, अभी तो मैंने कमाना भी नहीं शुरू किया। I think that is the vicious cycle. ठीक है, तो ये करने के लिए फिर मेरे पास लोग नहीं है, अगर लोग नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, करेक्ट? क्योंकि मुझे से फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स से सेल्स हमारे बस का नहीं है, आई कांट डू सेल्स, ठीक है? ऐसे मैनी सच सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ, अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, तो भी सेल्स करना डिफ़िकल्ट होता है, कैसे जाके खुद को पिच करे, अपनी सर्विस को पिच करे, ना हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है और वो हमारा एक्यूमेंट भी नहीं है, तो हमें या तो कोई सेल्स वाला रखना पड़ेगा, तो इतना उसका मार्केट कॉस्ट होगा, इतना एक्सपीरियंस चाहिए उसको, ये आना चाहिए, करेक्ट? तो दिस इज़ अ बिग टाइम प्रॉब्लम। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, या तो वी लुक फॉर पीपल अराउंड अस, Your inner circle or probably तो हम known people. शेयर्ड रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं। टीम का मतलब हमेशा फुल टाइम हायर करना ज़रूरी नहीं, ओके? You need not have always people on your payroll on fixed salaries. That's a myth. Okay. टीम इज जो आपके विजन को शेयर करे, आपके आइडियाज को शेयर करे और आपके साथ उस रास्ते में चलने को तैयार हो। दैट्स एनीवन हु इज अ पार्ट ऑफ द टीम, Correct. राइट? नाउ यू थिंक you can have someone like that with you who can help you with things. Say for example, can you give me, what are you not good at on screen? I mean, इसको No. Let's take it. No, I mean, I'm not good genuinely with sales. okay, so but you know any of your friend, any of your family members, anyone in your circle who can do a good job with this? A lot of them. Yeah. So now do you think they will understand your vision and will be supportive of your vision? A few of them, yes. Right. Now the next question you will be having कि फिर मैं उनको क्या दूँ, बिना पैसे के तो कोई मेरे लिए क्यों काम करेगा? Exactly. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है, पीपल, जिसका जवाब मैं नहीं राजित देगा, आई एम क्रिएटिंग अ क्वेश्चन फॉर हिम because this is another scenario that we have commonly come across together. Yeah, absolutely.
तो लोग क्या करते हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उसको स्टेक या इक्विटी कमिट कर देती हूँ। पैसा बांटो अभियान नहीं है, हाँ। स्टेक बांटो अभियान। हाँ, तो ठीक वो है। मतलब क्योंकि वी मेट अ गाय टुगेदर। So and this is not the first case. This is a very common scenario कि अभी मेरे पास, हाँ, तो अभी मेरे पास एंड अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड इस चीज को बहुत रोमांटिसाइज करता है। I think I was coming to that. ठीक है, कि आज पैसे नहीं हैं लेकिन ख्वाब बड़े हैं, यू कम विथ मी एंड यू नो पार्टनर्स। हाँ, ठीक है, बट दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ओके, वो ही विल इलेबोरेट ऑन दैट, correct, but yes, once people have a shared vision, they also know कि जब ये बड़ा बनेगा हम सब कमाएंगे। ठीक है, so everybody participates in that purpose, shared goal. Okay, not necessarily you will have to give out stakes and equity. Okay, you can work on commission, you can work on commission structure, you can work on incentive structure, you can work on project structure. There are multiple Based on things. assignments. Yes, multiple things that can be done. Okay. So that brings me to an added question, that will it really solve my problem? And if yes, how? I mean, you partly said that, you need not pay a person full time working in that role to begin with, probably. Yes. So, for example, Rajit already said that CFO services, virtual CFO services are available, which is a very small cost. Correct. तो आपको इतना एक फुल टाइम अकाउंटेंट का या एक सीए हायर करने का उतना बड़ा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे वर्चुअल एचआर सर्विसेज आर अवेलेबल, क्योंकि आपके पास टीम नहीं है तो आपको बैठ के वो एक एक लेटर बनाना, किसी को भी आप, एंड यू नो स्मॉल बिजनेसेस या स्टार्टिंग बिजनेसेस में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीम बिल्ड करना, क्योंकि लोग आके देखते हैं अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है, आई एम द फर्स्ट वन, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। Correct. However, a lot of people say that, my teams are not performing. So these are the common challenges that we hear of. तो टीम हायर करने से पहले एक तो आपको ये समझना है कि जैसे मैंने 7 फंक्शंस के बारे में बात की, बिजनेस फंक्शन, तो उसका आप जब आप खुद से सारे फंक्शंस पे एक बार काम कर लेते हो, अगेन द प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम खुद काम करते हैं तब हम एक हैमस्टर व्हील की तरह करते रहते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करते। उस टाइम हर काम जरूरी महसूस होता है। हाँ, सो एवरी डे इज अ फायर फाइटिंग थिंग, एंड चलो अभी ये आया, ये कर लिया, ये का आया, ये कर लिया, तो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो जब सोचते नहीं हैं तब उसका कोई एसओपी जैसा क्रिएट नहीं करते हैं। क्लाइंट से बात करनी है तो फोन उठा के बात कर ली, उसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं होता है। तो जब हम स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं तो हम कल को किसी को लाते हैं तो हम उसको कैसे सिखाए कि इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है। सो आप अगर हायरिंग से पहले या किसी को भी टीम में लाने से पहले आपका खुद का एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करते हो कि मैं ऑनबोर्डिंग, चलो मेरे 10 ऑनबोर्डिंग मैंने इस तरह से किए तो ये स्टैंडर्ड है, क्लाइंट को मैंने ये बोला तो क्लाइंट ऑनबोर्ड हुआ। भले आप उसको रिफाइन करते रहो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट एक दैट इज कॉल्ड एन एसओपी, इट्स नॉट अ वेरी फैंसी थिंग। ठीक है, सिस्टम्स कैन बी वेरी सिंपल। कल अगर आप जैसा आपने बोला, लोग कहते हैं माय टीम्स आर नॉट परफॉर्मिंग, या एब्सोल्युटली, बट वो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स कई बार क्लियर नहीं होते। आपको पता चल रहा है दे आर नॉट परफॉर्मिंग, लेकिन आप उसको रेगुलर ट्रैक करोगे, उसको प्रॉपर पैरामीटर्स दोगे, और आप ट्रैक कैसे करोगे जब आपके पास डैशबोर्ड्स होंगे। ठीक है, वरना आप क्या करोगे, लोग को फोन करके पूछोगे। I think as an entrepreneur, it is also important to diagnose what is the problem, and that is when you say that you need to dip your feet in all 7 verticals, at least to understand what could be wrong. फिर वो आप खुद ना करो, लेकिन आप उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करो
आप अपने एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करो, करेक्ट, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो कि ये काम क्यों कर रहे हैं, Exactly. और उसका एक डैशबोर्ड क्रिएट करो कि कल को कोई और करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही कर रहा सही है। कर रहा है नहीं कर रहा है. Okay. That is where look and feel of every vertical is important when you. Okay. एंड देन कम्स द डेलीगेशन स्किल कि मैं मेरे एक्सपेक्टेशन समझाऊं कैसे। आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में है कि तिथि ये क्लाइंट को मिलके आएगी, मेरे लिए ये क्लाइंट क्लोज करेगी, बट शायद आपके दिमाग में इतना ही है कि मुझे बस उनको मिलने जाना है। क्लोजर का प्रेशर नहीं है शायद, मे बी आई एम नॉट टोल्ड इनफ. ओके, ठीक है, मेक सेंस. तो आउटकम मेरे दिमाग में कुछ और है, आपके दिमाग में कुछ और है, और वो नहीं होने के कॉन्सिक्वेंसेस भी मेरे कुछ और हैं, आपके कुछ और है। Correct, correct, correct. Okay, so I think that answers the question, and I think genesis, process, and outcome is more or less interlinked for an entrepreneur, but वो आपके पार्टनर, आपकी टीम को भी कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन फॉर यू राजित, दैट could we start a business or could we venture into an activity with a partner, husband, sibling, friends? How do we navigate through these challenges? Because no one can predict future, right? Your friendship can go wrong. Your sibling starts thinking differently. सी पार्टनरशिप के सवाल का जवाब मोह ने अप टू सर्टन एक्सटेंट दिया है. ठीक है, हम दोनों पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं कि राजित देगा ये. सो आई विल रिपीट दैट अगेन. मैं मेरी लैंग्वेज में उस चीज को बता देता हूँ. सो आई ऑलवेज से कि सिनर्जी क्या है. सब्जी बनानी है तो सब्जी कौन लाएगा और मसाला कौन लेकर आएगा. क्या ऐसी कोई सब्जी है, ऐसी कोई डिश है जो सिर्फ एक ही चीज से बन जाती हो? नहीं बनती. नहीं, सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स नीड टू थिंग. दूध पाक भी बनाना है तो दूध और शक्कर दोनों चाहिए. दिस इज द सिंपलेस्ट आई कैन थिंक ऑफ. तो आपका पार्टनर आ रहा है, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट पार्टनर वर्ड. पार्टनर आ रहा है, वो सिनर्जी लेकर आएगा. ठीक है, हमारे यहाँ पर पार्टनर और इन्वेस्टर के बीच की सेग्रीगेटिंग लाइन लोग नहीं समझ पाते. वो एक अलग चीज है. पार्टनर कौन है? पार्टनर वो है जो आपके साथ खड़ा रहेगा, जो कुछ सिनर्जी लेकर आएगा. अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि वो डेली बेसिस पे लाएगा. Okay. मोह ने एक्सप्लेन किया अभी आपको कि वो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई सिनर्जी. मैं अकाउंट्स देख रहा हूँ, मैं आपका पार्टनर हूँ, मैं रोज तो नहीं आऊंगा आपके बिजनेस में. मेरा काम एक स्पेसिफिक टाइम पर शुरू होगा, एक स्पेसिफिक टाइम पे खत्म होगा, एक स्पेसिफिक रोल असाइंड होगा. आपका सेल्स का पार्ट है, आपने किसी को सेल्स पार्टनर लिया है. जोमेटो, स्विगी क्या बोलते हैं? डिलीवरी पार्टनर है. तो डिलीवरी पार्टनर कब काम कर रहा है? सिर्फ जब तक डिलीवरी चल रही है तब तक. तो डिफाइंड रोल है. तो पार्टनर का रोल है. इन्वेस्टर को आप पार्टनर बोलो, पर वो आपका पार्टनर नहीं है. वो सिर्फ पैसा लगाएगा, वो उसका रिटर्न के लिए आपके साथ में. ठीक है, आपके बिजनेस में हैम्परिंग हुआ है, वो उसका कंसर्न नहीं होगा. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सिंस पास्ट 15 years, आई एम रनिंग अ फर्म विथ n number of partners. Okay, which is I am very proud to say कि हम काफ़ी बड़ी फर्म ऑपरेट करते हैं ऑन अ स्केल. तो मेरा ये मानना है कि पार्टनरशिप में आपकी सिनर्जीज क्लियर होना, सिनर्जी सेट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको सेल्स करना नहीं आता है, आपके साथ आपके सिबलिंग आ रहे हैं, उनको सेल्स करना आता है, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर है, सेल्स ये करेगा, एग्जीक्यूशन मुझे करना है. Okay. बराबर. सब्जी आप ला रहे हो, मसाला कोई और लेके आने वाला है. तो वहां पार्टनर का सिनर्जी जब क्लियर नहीं है ना, तो मैंने लोगों को कोर्ट के धक्के खाते हुए देखा है, पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा है. पिछले 15 सालों में मैंने जितनी बैलेंस शीट्स बनाई नहीं होंगी, उतनी लिक्विडेट भी करते देखी हैं. एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट.
And I think that that's what makes us think of this question. Could we say that partnership is proportional to the complementing skills? सीखा जा सकता है। सी मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन शादी कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। पार्टनरशिप इज नॉट एनीथिंग लेस देन योर मैरिज, एब्सोल्युटली नॉट। आप कितना भी प्रोफेशनल रहने की कोशिश करो, आप कितना भी सिनर्जी सेट रखने की कोशिश करो, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब तक दोनों पार्टनर ये नहीं मानते हैं कि हम दोनों को ही नुकसान हो रहा है, तब तक पार्टनरशिप चलेगी नहीं। अगर एक फायदे में और एक नुकसान में, वो पार्टनरशिप बहुत जल्दी टूट जाएगी। Okay. या तो दोनों अल्ट्रा खुश हों अपनी पार्टनरशिप से, अरे हम दोनों एकदम बेस्ट हैं, या दोनों दुखी हों, तो वो दुखी रहेंगे तब तक जुड़े रहेंगे। इंटरेस्टिंग है बात। But I have a question here, Rajat. Though Tithi is the host, but I will intervene with the question. कई बार क्या होता है कि I have seen this scenario कि there are two people coming as partner, agreed to come as partner, one in one capacity, maybe sales जैसे बोला, और एक operations, ठीक है। अब कई जगह पे ये सिनेरियो आता है कि जो सेल्स ला रहा है वो समझता है कि मेरा स्टेक ज्यादा होना चाहिए। I think there was somehow in my head कि everyone would value themselves more. बट ऑपरेशंस वाला बोलता है कि मेरे बिना Execute तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, ज्यादा लोड तो मेरे पे भी है कि मेरे को तो इतना सारा फंक्शंस संभालना पड़ रहा है। तो हाउ, मतलब धंधा लाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट और डिलीवर करना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो एंड दिस इज अ कॉमन सिनेरियो आई हैव फेस्ड मल्टीपल टाइम्स। सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? 3 डेकेड के एक्सपीरियंस के बाद में मैंने वही वर्ड यूज किया कि दोनों का दुखी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे तो है दोनों दुखी। सी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को एक, जब क्वालिटेटिव फैक्टर होता है ना, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप नहीं नाप सकते हो। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट, मतलब सेल्स वाले काफी खुश हो जाएंगे शायद ये बात सुन के, इफ यू विल सी द CEOs ऑफ मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज, द Fortune 500, दे belong to a section of sales. हमारे लिए थोड़ी सी दुख भरी बात है कि कोई भी फाइनेंस अकाउंट्स का आदमी वहां तक पहुंचता नहीं है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। सो सेल्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस स्टोरी, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बेचने के बाद में डिलीवर नहीं करना होता है। Exactly. सबसे ज्यादा आपको उन कंपनीज से शिकायत होगी जिसका सेल्समैन कमिट करके गया और पीछे से सर्विस नहीं मिली है। ट्रू। तो दो पार्टनर्स अपने आप को हायर ऑप्स रखने की कोशिश करते हैं, वहां पर बिजनेस के फेल होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। बिजनेस के फेल होने के कुछ सिनेरियोस के बारे में बात कर लेते हैं अब, क्योंकि हम उस बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन टू इट। पहली चीज होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। When you don't clearly communicate कि मैं क्या करूंगा, तुम क्या करोगे। Exactly. जब ये पता ही नहीं है तो मे बी 2 दिन 3 दिन या 7वें दिन झगड़ा होना तय हो जाएगा। I think that is the same thing that I said during when you talk about delegation to the team. You know, that clarity is important, starting from the partners to the people. And I think complementing skills, depending on each Because and your everyone. partner is ultimately a part of the team. दूसरी चीज, कोई भी 2 लोग जब साथ आते हैं तो उनका गोल कॉमन होना चाहिए। Shared vision, of course. Yes. तो क्वेश्चन का आंसर वहीं खत्म होता है। अगर आपको और मुझे दोनों को साथ में बड़ौदा नहीं जाना है, तो एक गाड़ी में बैठने का मतलब नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी को आनंद तक जाना हो और किसी को बड़ौदा तक जाना हो, तो आनंद वाला बीच में उतर जाएगा, दैट इज ओके। मतलब बट रूट तो सेम हो, रूट सेम हो। सो आपका विजन, फिर आती है अंडरस्टैंडिंग। अगर विजन सेम नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग होने से फायदा नहीं है।
हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है. आप आर्किटेक्ट हो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चालू करनी है, आपको आर्किटेक्चरल फर्म चालू करनी है. कैन वी वर्क टुगेदर? Maybe not. मे बी नॉट. तो इवन दो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, पर हमारा विजन कॉमन नहीं है, नहीं होने वाला है. हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, हमारा विजन प्रॉपर है, हमारे बीच कम्युनिकेशन का गैप है, अगेन लीड्स टू फेलियर. और सबसे बड़ी चीज, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि वो सेल्स करे. मान लिया वो सेल्स करके ला रहा है, अब आप चाहते हो वो हाई टिकट क्लाइंट्स लेके आए. आप उससे एक्स अमाउंट का क्लाइंट चाहते हो, वो वाई अमाउंट का क्लाइंट लेके आ जाता है. आप बोले यार मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तू तो किसी को भी बेच आता है माल. मैं इतना फ्री थोड़ी हूं कि सबको काम करके देता रहूंगा. मैं सिर्फ एक जनरल सिनेरियो मूव. This is a practical scenario. Defining the expectation is something that is important. तो सिर्फ पार्टनर्स का आना बहुत आसान है, सभी को अच्छा लगता है, चलो 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 बिजनेस करेंगे, बॉलीवुड है, कंपनी बना दी, शेयर्स बांट दिए. पर रियल वर्ल्ड में इस तरह से नहीं होता. बिजनेस इज नॉट समथिंग कि जो मतलब आप बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड मैनर में ले सकते हो. उसके अपने निटिग्रिटीज हैं, उसके अपने कंप्लायंसेस हैं. आपको चाहिए, आप किसी इन्वेस्टर को पूछो आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो क्या? अगर आपका नेचर ये सब कुछ मुझे ही करना है, चिट्ठी बांटू भी मैं, छाटू भी मैं, तो फिर आप ही सब कुछ हो, फिर पोस्ट ऑफिस आप ही बन जाओ. Correct. इन दैट सिनेरियो यू डोंट नीड अ पार्टनर. माइंडसेट चाहिए, पार्टनर होने के लिए माइंडसेट चाहिए. तो आपको ये तय करना है कि आपको पैसा चाहिए या आपको स्किल चाहिए. Correct. Am I able to do all these 7 tasks that she mentioned of? अब कोई बोलेगा मेरे को तो दोनों चाहिए, तो दोनों चाहिए तो बाबा उसके लिए इन्वेस्टर मिलता है और स्किल के लिए यू कैन हायर. स्टिल यू कैन हायर. तो पार्टनर बनाना है नहीं बनाना है, अगेन आप अपना टेम्परामेंट देखो, ये चीजें चेक करो, देन विल समडे विल हैव दैट थिंग कि हाँ हम लोगों को बता सकेंगे किसी थ्रू कि पार्टनर्स कैसे सिलेक्ट करना चाहिए. विल गिव दैट आउट. I'm sure that's going to be a very long process. But that brings me to one common question for both of you. We have been talking about processes, people, challenges, bottlenecks, do's, don'ts, compliance, XYZ. Let's take an example of this publishing house itself. What is the foundation that we should work on? Say from the paisa perspective and from the people perspective, right? So foundation has to be strong for the building to stay. That's what they say. So what should be the foundational work that I should take care of? See, all said and done, I'll charge you. Me too. We don't work for free. But आप ट्रेलर दे सकते हो. So I think you first answer that question because my things like second ki. See, again, starting when you start a publishing house, I'm sure you have multiple ancillary services to include in that. Correct? You have certain skill sets. You know these are my strengths and these are my weaknesses. You Correct. sit down before starting anything. You start knowing yourself first and your resources available. इतना एनालिसिस तो हर कोई करता है. करता है, yes. ठीक है. तो जब आप वो एनालिसिस कर लेते हो कि इतना मेरे पास है, मेरे खुद के पास, और इतना मेरे को बाहर से लाना है, ठीक है, फिर आप उसमें सोचते हो कि इसमें मुझे पैसा कितना लगाना पड़ेगा या कितना मेरे को चाहिए टू स्टार्ट. देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस टुडे व्हिच कैन स्टार्ट विद एब्सोल्युटली जीरो इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. Especially when it comes to service industry, a lot of people, so it is not a very big challenge. तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, we start creating our own baskets. हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, हम उनके सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. कहीं पे आप you complement each other. It's not always about a stake or a salary
or a commission at times. At times, what we receive or what we give is way beyond the monetary value. Mm-hmm. Okay. But first thing is getting the right people. So there's this book I always refer to, Good to Great. You know, one of the best books I have ever read. Okay. So उसमें एक चीज बहुत evidently, you know, your business is like a bus. Okay. Most entrepreneurs have the thought कि बस चलाना शुरू करते हैं, लोग चढ़ते जाएंगे. Okay. So that's a common scenario. Now, when we talk about a good business, a great business, again, it's a myth. A great business need not be a Fortune 500 company. Mm-hmm. You can be a very small business and still be a great business. So, great businesses are based on the great vision that you have, not on the great money that you have. It's based on the great people that you have. Okay. So, it very clearly mentions that अगर आप बस चलाना शुरू कर देते हो और गलत लोग चढ़ते जाते हैं, फिर आप उनको उतारते हो, फिर नए लोगों को चढ़ाते हो, ठीक है, हाँ कुछ हद तक वो करना पड़ता है, ऑर्गेनिकली समहाउ होता रहता है, ठीक है. बट अगर आप उस विजन के साथ नहीं कि पहले मैं लोगों को जोड़ूं और फिर चलना शुरू करूं, ठीक है. which bus would you prefer to travel? A bus जिसमें तुम्हारा प्री बुक्ड सीट हो, यू कंफर्टेबली ट्रैवलिंग, या फिर तुम चढ़ जाओ और देखो सीट जब खाली होगी तब बैठोगे? आई थिंक द फर्स्ट सिनेरियो. ठीक है. सो दैट्स द इजीएस्ट एग्जांपल आई कुड गिव. सो फाउंडेशनली कोई भी बिजनेस के लिए, सो एचआर जो लोग बोलते हैं ना, एचआर इज अ वेरी अंडररेटेड डिपार्टमेंट, which is usually people think it's about the documentation, the formats, the payroll, the recruitment. It's about people. It's about finding the right people, the attitude. Because skill and knowledge सिखाई जा सकती है. आपको सेल्स नहीं आता, मैं आपको सिखा सकती हूँ, ठीक है. लेकिन सेल्स के लिए जो एटीट्यूड चाहिए वो नहीं सिखा सकती. यस, है ना. करेक्ट. तो ये मेरा और राजित का, हम दोनों का ऐसा है कि हम पहले इंसान के एटीट्यूड को देखते हैं. नॉलेज नहीं है चलेगा, वो हम सिखा देंगे, ठीक है. सो वी ट्राई टू द फाउंडेशनली, मैंने पहले आपको प्रोसेस की बात की कि आप 7 फंक्शंस में डिवाइड करो. नो मैटर हाउ स्मॉल योर बिजनेस इज, नो मैटर इवन इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, sit down and break it down into the 7 functions. Don't start with a chaos mindset. Correct. No matter out of 7, 6 I am personally involved, it could be a situation in the beginning. और उसको थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्डाइज करो, रिफाइन करते जाओ, एंड उसके लिए सही लोग, वो हायरिंग हो जरूरी नहीं है, बट गेट द राइट पीपल ऑन द बस, बिकॉज दीज प्रोसेसेस इवेंचुअली विल बी रन बाय योर पीपल. Correct. Ultimately, it is going to be their area of work. Correct. So your systems become the spine and your people become the heart. दोनों में से एक भी चीज अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, पूरा बॉडी इफेक्ट होता है. Makes sense. So, but structurally, and yes, the most important thing, the man, material, money वाला जो एस्पेक्ट आता है, no business can run without these. So without money, again nothing happens. चलो आज तो कोई प्यार मोहब्बत में, यारी दोस्ती में काम कर देगा, 2 दिन बाद तो पूछेगा. हमेशा नहीं करेगा. Yes. So that's very important again. So that is where he has to step in with the financial and the structural aspects. So there was a guy came to me, got a 50 crore funding from the bank.
फिनोमिनल, 50 करोड़ का फंडिंग ले लिया है बैंक से, वो बिजनेस फेल हो गया डे 1 पर। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के लिए तो पैसा मिल गया, मशीन्स के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं मिला। कॉम्प्लेक्स जार्गन्स हैं, पर समझने वाली बात है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, डे 1 पे आप एक शीट बनाओगे, आप लिखोगे बस चलानी है ना, तो बस खरीदनी है या किराए पे लेनी है। डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट थिंग्स, फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर करनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी इनकर करनी है, किस प्रोपोर्शन में इनकर करनी है। सो इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स ऑफ फाइनेंस बनाना है। ओके। आज इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर फिर भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डाल देते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आप बस खरीदने वाले हैं तो बस की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद में आपके वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल डीजल डलने वाला है, तो उसका एक कांस्टेंट कॉस्ट होने वाला है, तो वो आपका एक वेरिएबल कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट होती है। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में जो सभी लोग समझते हैं, पर हम वर्किंग कैपिटल को इस तरह से समझते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके रेगुलर बिजनेस को फंक्शन करने के लिए जिस कैपिटल की जरूरत होगी, कैपिटल लाने के मीडियम क्या है? या तो आप खुद इन्फ्यूज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, वॉटएवर XYZ। अनसिक्योर्ड लोन, किसी से प्रेम मोहब्बत दोस्ती में ले लोगे, वो दे देगा नहीं देगा पता नहीं, जो भी है XYZ। बैंक के पास जाओगे, बैंक कैन फंड यू अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। आपका बिजनेस किस तरह का है, क्या चीज़ है, उस हिसाब से। करेक्ट। अब इन सब का गैमेट बना के ये समझना कि मैं डेट लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, तो उसका कॉस्ट कितना होगा। अनसिक्योर्ड लोन अगर मैंने किसी से लिया है तो उसका रीपेमेंट टर्म्स क्या होगा, उसे कब चुकाना होगा वापस से, ठीक है। अब इक्विटी फ्री ऑफ कॉस्ट तो आती नहीं है, आप काम करोगे तो पैसा कमाने के लिए करोगे, तो उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है। तो ये सब समझते हुए ये ब्रेकअप करना कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का दिखाई देगा, मुझे कौन सी कॉस्ट इनकर करनी चाहिए, कौन सी कॉस्ट इनकर नहीं करनी चाहिए। अभी हमने कोरोना की बात करी, मोस्ट ऑफ द बिजनेस विच वर हैविंग ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट, आप ताला लगा के ऑफिस के बाहर गए हो तो भी जो कॉस्ट आपकी चल रही है, आपका सैलरीड एम्प्लॉई है, वो कॉस्ट अगर रेगुलरली चालू है तो वो दैट इज whether you are sleeping, you are working or not, that is incurred, that is fixed cost. वेरिएबल कॉस्ट वो है कि किया तो लगेगा, नहीं किया तो नहीं लगेगा। रॉ मटेरियल मंगाया तो पैसा लगेगा, नहीं मंगाया तो नहीं लगेगा। तो कभी कभी हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करें या ना करें। आपके केस में बस खरीदनी है या रेंट पे ले लेनी है। इनिशियली अगर मैं बस रेंट पे ले लेता हूँ, जब तक मेरा टू एंड फ्रो हो रहा है, तो मैं बस अगर रेंट भी कर लेता हूँ तो मुझे उतनी फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। करेक्ट। That is in case of a publishing house. I work with freelancers in the beginning. Absolutely and not true. probably have Absolutely people true. in the team. Whether you will like, अभी मैं पब्लिशिंग हाउस है तो क्या मैं प्रिंटिंग भी खोल दूं क्या साथ में? क्या मैं प्रिंटर्स को लेकर आ जाऊं पिक्चर में? अपना खुद का प्रिंटिंग हाउस, मतलब या बुक बाहर प्रिंट हो जाएगी तो आउटसोर्सिंग भी हो सकता है। हाँ, तो मेरा कोर क्या है, मेरा बिजनेस किस चीज पर बेस्ड है। Again, the vision that we have been speaking Absolutely about. true. What you are good at. वो लोग जो ये बोले कि अरे यार मुझे खाना बनाने का बिजनेस करना है, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है, they are somehow bound to fail. Correct. आप करना चाहते हो लेकिन उस काम का कोई स्किल सेट आपके पास में नहीं है। मेरा यह मानना है कि कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट्री या एक सब्स्टिट्यूटरी स्किल आपके पास होना चाहिए। या तो बिजनेस करना आना चाहिए या खाना बनाना आना, दोनों में से एक आना चाहिए। तो लोग इसलिए फेलियर की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि उनके पास उस तरह का विजन नहीं होता है। दूसरी चीज जो हमने कॉस्ट की बात करी वो एक फाउंडेशन का पार्ट होती है, और फिर प्रोसेसेस की बात आती है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरह से टीम बिल्डिंग होगी। करेक्ट। देन टेकिंग पीपल टुगेदर, देन इट इज अ प्रोसेस, फिर वो धीरे धीरे ऐड ऑन होता है। करेक्ट। जस्ट समराइजिंग आवर कन्वर्सेशन टुडे, जो लोग बोलते हैं कि कारवा बनता गया, ऐसे ही नहीं बनता। यू नीड टू हैव विजन फॉर इट, प्रॉब्ली डिफाइन द रोल्स के
ये कारवा में 50 लोग हैं तो सबका रोल क्या है, राइट? एंड बीइंग अ लीडर, आई थिंक ऑफ द सिस्टम, यू नीड टू नो दैट what these 50 tasks are, right? And I think it is driven by a vision. सो खाना नहीं बनाना आता है पर बनवाना आता है तो भी आप चला तो सकते भी हैं। आप चला चला सकते सकते हैं, हैं, मेक सेंस, यस. हमारे इंडिया के जो सबसे वेल्दीएस्ट इंसान हैं उन्हें शायद रिक्स से ऑयल निकालना नहीं आता होगा, शायद, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट शायद, Correct. लेकिन स्टिल इट इज रनिंग Running, yes, of course. रनिंग क्योंकि प्रॉफिटेबली। उनको पता है कि वो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे और काम उन कैसे? लोगों को क्या ऐसा दे जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड होके काम कॉन्स्टेंटली करते रहे. Correct. Okay. So I think that's it. Thank you so much for the insights. Thank you Probably so we'll much, break Preeti. all these things down in near future at a micro scale, but this was a kind of a good umbrella sort of a conversation. Thank you so much, Tithi, Thank you. Thank for you. having us, and I hope this helps more viewers to give them motivation to start new businesses, and at whatever level of business they are, Correct. it helps them in some way to fundamentally to solve their problems, reach At least from they can- chaos to clarity. they can kickstart the things. Yes. Chaos to clarity. Yes, that's what. While you don't lose on cash. That's peace with prosperity. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hope you enjoyed watching this podcast and the journey of exploration, how you can make your business more aligned. If you have something that you want us to explore more with you, please write us on the comments and hope to see you again.